Uh, Good afternoon, everyone. I, on behalf of Export Promotion Council for Handicrafts, welcome you all to this Exporters Clinic session on navigating new GST reforms, regulatory insights for handicraft exporters. As you all know that GST 2.0 has been introduced and is applicable from 22nd September onwards, wherein the rates have been rationalized and has been brought into two slabs, 12% and 5%. The council has already circulated the details. The rates on handicraft items are there on our website. The link has been given to our member exporters. So we thought, since you all know you are part of this Exporters Clinic initiative, wherein in the past what we've done in the last 1.5 months, we had various topics on which we discussed upon, and this is one important topic that we thought probably it is an opportune time wherein we can have some discussion on. So, to begin with, we have with us Mr. Manoj Goyal. Most of you know him. He's our uh, renowned faculty for this GST initiative for the last, I think, 8 years when the GST was introduced. Mr. Manoj Goyal is a professional with more than 18 years of post qualification experience across multifarious industry spectrums. He is currently a managing partner with RHMS and Company. He's a skilled trainer and a speaker with an aptitude of attracting audience for us that we know, that we can vouch for. He has also authored handful of articles on different topics and has also written books titled GST Unlocked and Ready Reckoners on GST. He's an approved faculty on GST listed with Indirect Customs Committee of the ICAI. So thank you so very much, Manojji, for once again being part of our discussion, both physical and virtual. We have been interacting. So today it's a virtual thing. So we welcome you all. Now I would request you, I have with me in my office Mr. Vikas Goyal. He's a chartered accountant and joint director with EPCH, and also have with us Mr. Rajesh Singh. He's a deputy director with the council. So, Manojji, should we start? Yes, sir, we should. तो अगर आपके पास if you have any PPT of that sort of कुछ बताना चाहें तो you can share your screen, and then probably what we'll do is I would want all the participants to carefully listen to what is being said. और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को आप पूछें, ध्यान में रखें. You can raise your hand or else you can write in the question answer session. Meanwhile, somebody is asked for the link of the EPCH website where the GST rates have been given. तो just copy कर देना उसमें. ठीक है. So Manoj ji, it's over to you. Thank you, Rawat sir. Thank you, the entire management team of EPCH for giving me these repeated opportunities of interacting with the exporter community, especially on the handicraft segment. So it has always been honor to be here with all the exporter members, and so is the one today. So the occasion that we are here for today is quite significant in the sense that everyone's saying that there has been a historic change by way of introducing GST 2.0 by the government, which is we all know that the significant reduction in rates, right from there are two slabs which have been almost completely rather, abolished. But still, we have a very few items falling in these categories. But largely now, out of the four major categories, we only have two categories under which the taxation will continue to happen. तो आई थिंक हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं बेसिकली जीएसटी, उसके रेट्स और क्या अभी जो चेंजेस आए हैं उसमें प्रपोज हुआ है, बेसिक चीज़ें आई थिंक हम सब लोग जानते हैं. बट फिर भी 2 मिनट में एक मोटा मोटा रीकैप कर लेते हैं सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू सिग्निफिकेंट थिंग्स विच प्रोबेबली सब लोगों के दिमाग में नहीं होंगी. तो सबसे पहले
ये जान लेते हैं कि जो टोटल रेट्स इससे पहले प्रिवेल करते थे 2.0 से, जो कि इफेक्टिव फ्रॉम 22 अक्टूबर चेंज हो गया है। सो अदर देन द 4 कैटेगरीज जो कि प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज, बट इसके अलावा कुछ बहुत छोटे स्केल पे अदर कैटेगरीज भी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ रेट ऑफ 1.5%, there was another rate for 0.25%. For very limited items like diamonds, etc., there were other slabs as well. तो जब हम टोटल स्लैब्स की बात करते हैं तो वो 4 नहीं है जो कि हम हर जगह पे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, बट देर आर हार्डली एनी आइटम्स विच फॉल अंडर द कैटेगरी बियॉन्ड द 4 कैटेगरीज विच वर देयर। तो आज का हमारा डिस्कशन हम फोकस करेंगे उन्हीं 4 रेट कैटेगरीज पे, जिनको कम करके अब 2 कर दिया गया है। तो मेजरली जो 4 कैटेगरीज थी, 5%, 12%, 18 और 28, इनमें से अब जिन 2 रेट्स को रिटेन किया गया है वो है 5% और 18%, विच मीन्स कि 12% और 28% ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑल्दो फॉर सर्टन वेरी स्पेसिफिक आइटम्स रेट ऑफ टैक्स ऑफ 28% इज स्टिल देयर। तो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे अभी भी 28% का रेट अलोंग विद द कॉम्पनसेशन सेस कंटिन्यूज, बट दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ द डे, एंड दैट दिस इज ओनली फॉर आवर इंटरनल कंजम्पशन, कि 28% का रेट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। 12% टू माय अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, बट हैविंग सेड सो, हमारा फोकस ये है कि 2 मेजर रेट कैटेगरीज जो हैं वहां से शिफ्ट करके अब दूसरी 2 कैटेगरीज में ही मेजर टैक्सेशन फॉल कर रहा है। तो जो 28% के आइटम्स थे वो मेजरली अब ट्रांसफर हो गए हैं 18% में, और जो 12% के आइटम्स थे वो मेजरली ट्रांसफर हो गए हैं 5% में, और 5% के बहुत सारे आइटम्स अब ट्रांसफर हो गए हैं 0% पे। तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि काफी सारे रेट्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। लेकिन एज अ बिजनेस कम्युनिटी हम लोगों को इसके बियॉन्ड भी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, तो जो भी रेट चेंज हुए हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर आइटम्स पे इफेक्टिव हैं। इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स का मतलब है जो इंडस्ट्रियल यूज के प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जनरली काम आते हैं, उनके बहुत सारे रेट्स आज भी हायर रेट पे एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली उनके रेट भी स्लैब्स अबॉलिश होने के बाद में जो 12% और 28% खत्म हुआ है तो वो भी रिकैटेगराइज हो गए हैं 18 में और 5% में, बट still there are so many items which as far as raw materials are concerned वो 18% पे या बहुत बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो 5% पे शिफ्ट हो गया है। So while for the ultimate consumer it seems like almost all the items will be cheaper because रेट जो है वो कम हो गया है, बट एक बार इसको थोड़ा डिटेल में ड्रिल डाउन करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि क्या सारे आइटम्स में इफेक्टिव प्राइसिंग कम हो जाएगी। बहुत सारे आइटम्स जिनका रॉ मटेरियल आज 18% पे है, पहले भी 18% पे था, लेकिन आउटपुट उनका 12 या 18 पे था जो कम होके 5% हो गया है। तो ऐसे केसेस में इफेक्टिवली कस्टमर के लिए प्राइसिंग कम हो जाएगी जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, बट फॉर द इंडस्ट्री इट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जीएसटी में ये पहले भी था। लेकिन पहले अगर ये 5% बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता था तो हो सकता है कि अब नए चेंज आने के बाद में ये 25% लोगों को इम्पैक्ट करे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके रॉ मटेरियल के इनपुट्स ज्यादा रेट पे आ रहे हैं और जो फिनिश गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं वो कम रेट पे सप्लाई हो रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स में क्योंकि ज्यादातर आइटम्स अब 5% पे टैक्स हो गए हैं, which means that there will be situations where effective input tax credit will be higher than the output rate, making or creating a inverted duty structure. तो ज्यादातर एक्सपोर्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाएगा और वो एक्यूमुलेशन आपके लिए रिफंडेबल है सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तो आप अगर एक्सपोर्टर हैं तो 2 तरीके से रिफंड ले सकते हैं जो हम पहले भी न्यूमरस ओकेजन्स पे डिस्कस कर चुके हैं। एक, आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाइए, टैक्स पे कर दीजिए और उसका रिफंड आपको कस्टम्स के थ्रू मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा तरीका है वो एलयूटी के अगेंस्ट एक्सपोर्ट करने का है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट,
जिसका मतलब है कि आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, बट जितने भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं वो सब एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिनका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो मैं इस एक पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि अभी जो नया चेंज है उसमें ज्यादातर एक्सपोर्टर्स के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा कि जो लोग विद पेमेंट कैटेगरी में जा रहे हैं उनको अपने मॉडल को एक बार रीडिजाइन करना पड़ेगा। बिकॉज विद पेमेंट कैटेगरी में अब आपकी आउटपुट लायबिलिटी सिर्फ 5% रह गई है, और बाकी इनपुट्स काफी हद तक आपके अभी भी 18% में होंगे। तो इफेक्टिवली आपके पास एक इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया और उस पर 5 रुपए की आउटपुट लायबिलिटी आई, और हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 50 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करना पड़ा, जिसपे 18% की इनपुट टैक्स है, तो 9 रुपए का आपके पास इनपुट हो गया। तो प्रेजेंटली बहुत सारे लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो विद पेमेंट कैटेगरी में एक्सपोर्ट करते हैं, 5 रुपए की टैक्स पेमेंट दिखा देते हैं, और उसके अगेंस्ट वो रिफंड सीधा कस्टम्स के रूट से बैंक अकाउंट में आ जाता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। बट प्रेजेंटली अगर आप ऐसा करेंगे तो जो 4 रुपए का एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके खाते में आ गया है, उसका क्लेम करना इफेक्टिवली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिकली एक ही एक्सपोर्ट पे दोनों तरीके का रिफंड लेना बड़ा डिफिकल्ट है। एक आपने एक्सपोर्ट का रिफंड ले लिया और दूसरा आपने इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड ले लिया। तो इस केस में आपके पास जो अब ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले मॉडल में जाइए जिसमें एलयूटी फाइल कीजिए और उसमें पूरे 9 रुपए का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, और या फिर आप इन्वर्टेड ड्यूटी वाले रिफंड मैकेनिज्म में जाइए अगर आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिकली भी सेल होता है तो। बट किसी भी सूरत में विद पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी उन लोगों के लिए इफेक्टिवली आज की डेट में यूज नहीं हो पाएगी जिन लोगों का इनपुट हायर रेट पे आ रहा है, विच मींस 18% पे आ रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में दो तरीके के इनपुट्स का रिफंड नहीं मिलता है जो कि अदरवाइज आपको मिल सकता है। नंबर वन, आप कैपिटल गुड्स अगर कोई परचेज कर रहे हैं तो जो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा उसका आप डायरेक्टली रिफंड नहीं ले पाएंगे। और नंबर टू, अगर आप सर्विसेज से रिलेटेड इनपुट है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा उसका आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। लाइकवाइज अगर आप जॉब वर्क करवा रहे हैं और कुछ जॉब वर्क ऐसे होंगे जो 18% पे टैक्स हो रहे होंगे, तो वहां भी अगर कोई इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है तो उसका भी आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इन नटशेल जो जीएसटी 2.0 है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स पे दो तरीके से आएगा कि आपको अपना रिफंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा based on the structure of the products that you are selling compared to the input tax credit that you have in your bucket। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विसेज से रिलेटेड है और अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और सबसे ज्यादा अच्छा तरीका उस केस में एलयूटी के मॉडल में जाना ही हो सकता है, क्योंकि विद पेमेंट में भी अगर जाएंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो दैट वाज पॉइंट नंबर वन विच आई वांटेड टू हाईलाइट। Number two, which is equally important point for all of us to understand is कि अब जैसे ये जब से रेट चेंज हो गए हैं तो आपके पास बहुत सारा इनपुट ऑलरेडी पड़ा होगा, which will be a kind of inventory in the form of finished goods also, which could be an inventory in the form of raw material or WIP. So we have to evaluate कि हमारे पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है बिफोर 22 अक्टूबर। बिकॉज 22 अक्टूबर से पहले खरीदी हुई इन्वेंट्री पे जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास एक्यूमुलेटेड है और जो इन्वर्जन बाद में क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर आपका रेट 5% डाउन हुआ है 18 या 12 से, तो हो सकता है कि 22 अक्टूबर से पहले जितनी इन्वेंट्री आपने खरीदी हुई है उसका एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिफंडेबल नहीं है। ना तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी वाले स्ट्रक्चर में रिफंडेबल है और ना ही वो एलयूटी वाले केस में रिफंडेबल है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 22 अक्टूबर से रेट्स इफेक्टिव हुए हैं नए। अगर 21 अक्टूबर को आपके पास ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल है, आपके पास WIP है या फिनिश्ड गुड्स हैं, तो उनके ऊपर आउटपुट रेट तो चेंज हो गया 22 तारीख से,
लेकिन जब आपने खरीदा था उस टाइम पे अगर जो भी 22 रेट सितंबर मनोज जी, 22 सितंबर मेरे ख्याल से। सॉरी, आई एम सॉरी, 22 सितंबर, यस यस, आई स्टैंड करेक्टेड। सो 22 सितंबर से पहले अगर आपके पास कोई भी इनपुट पड़े हुए थे, तो वो इनपुट का रिफंड आप एलयूटी मॉडल पे या इन्वर्टेड ड्यूटी मॉडल पे नहीं ले पाएंगे। वो सिर्फ आप ड्यू कोर्स में यूटिलाइज कर पाएंगे। यूटिलाइज मतलब सेल्स, अगर आपकी डोमेस्टिक सेल्स हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, अगर आप विद पेमेंट में एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो वहां यूज कर सकते हैं, और अगर आप पहले से एलयूटी में रिफंड लेते आ रहे हैं तो उसी मॉडल पे आप अभी भी अपने पुराने इनपुट का रिफंड ले सकते हैं, बट ओनली अप टू 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से पहले की अकाउंटिंग आप अलग कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है तो उसका आपको रिफंड अलग से मिल सकता है, बट दोनों की मिक्सिंग नहीं हो सकती है। तो आइडियली आपको ये भी देखना है कि आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या इंपैक्ट आ रहा है। और 22 सितंबर के बाद मेरे हिसाब से जहां कहीं भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रही है, वहां पे आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स में ना जाके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में जाके ही अपने रिफंड क्लेम करने चाहिए। दैट अकॉर्डिंग टू मी विल बी अ वाइज डिसीजन, बट स्टिल आई विल से दैट एवरी case will be unique. So don't go with this general opinion unless you have analyzed your specific case to the full extent. So other than this, one major change which will impact the exporters will be जो एक नया चेंज आया है इंटरमीडियरी सर्विसेज को लेके, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आज तक जो बाइंग एजेंट्स हैं या जितने भी लोग कमीशन कर इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम देयर फॉरेन बायर्स, सो दे वर ऑल बीइंग टैक्स्ड इन इंडिया बाय सेइंग दैट इनकी जो इनकम है वो इंटरमीडियरी कैटेगरी की इनकम है, और उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर नहीं होती है, इंडिया में ही होती है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स पेबल है। तो दैट अमाउंट वाज नॉट रिफंडेबल अर्लियर, but now in 56th council meeting they have decided to change this provision such that now all the buying agencies as well as commission agents who are providing services to foreign buyers, their tax refunds will also be entitled going forward. सो बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अभी तक कि ये जब भी नोटिफाई होगा, ये प्रोस्पेक्टिव डेट से नोटिफाई होगा। तो बैक डेट में जितने भी आपके टैक्सेस हैं वो उनका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिवली मिलेगा। सो विद दिस आई विल हैंड ओवर द माइक टू रावत जी एंड विकास जी टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस ऑन देम। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट 2.0 इज और उसके सेलियंट फीचर्स बताने के लिए। अब विकास, आप कुछ कहना चाहोगे, कोई बात? ये सर ने वैसे सारा क्लियर कर दिया है। बेसिकली सर एक क्वेश्चन था, पहले हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं फिर उधर आएंगे। व्हाट विल हैपन टू द आईटीसीएल परचेजेस मेड बिफोर द चेंजेस इन द जीएसटी रेट्स? विल यू गेट द आईटीसी एट रिड्यूस्ड रेट नाउ? कि सर जो मेरे आपने जैसे बताया भी था, लेकिन मेरी बुक्स में सर जीएसटी का लेजर में मेरे पास क्रेडिट पड़ा है सर अभी भी। तो क्या मेरे को जैसे नॉर्मली मैं उसका यूटिलाइजेशन करता था वैसे ही करूं या मैं उसका रिफंड क्लेम करूंगा? नहीं सर, आपको कोई रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने इनपुट का नहीं मिल सकता। तो मैं इस आंसर को 3 हिस्सों में ब्रेक करता हूं। नंबर 1, 21 सितंबर या उससे पहले जितना भी मटेरियल आपने परचेज किया उस पे जो भी रेट ऑफ टैक्स आपने पे किया है वो सारा आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अगर किसी रॉ मटेरियल पे 22 सितंबर ऑनवर्ड्स रेट कम हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो ऑलरेडी खरीदा हुआ माल है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। So you are entitled for all the input tax credit which you have paid to your suppliers prior to 21st September. Second point is, if you are exporting the goods, you must have been claiming all the refunds either by way of LUT or by way of with payment of tax. So जो भी 21 सितंबर तक आप मॉडल यूज कर रहे थे उसी मॉडल से आपका एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी है वो रिफंडेबल है। बट इन केस आप किसी भी तरीके से आप उसका रिफंड नहीं ले पा रहे हैं या वो एक्सेसिव अमाउंट है आपके लेजर में जो पड़ा हुआ है, तो वो आपका लाइफ टाइम यूजेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसका आप 21 सितंबर के बाद की सप्लाईज के लिए डायरेक्टली रिफंड नहीं ले पाएंगे, बट यूज कर सकते हैं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज
and for export under with payment category also. So ये आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बट इसका रिफंड आप कैसे ले पाएंगे दैट इज सब्जेक्टिव, कि आपने एक्सपोर्ट कैसे किया है 21 सितंबर तक। मैं ये समझूं कि वो खत्म नहीं हुआ है, वो आपके पास है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, बट अपनी फ्यूचर सप्लाईज के लिए या पेमेंट के लिए जैसे वो आप यूज कर सकेंगे, मतलब वो गया नहीं है कहीं, इट इज नॉट जी गॉन एनीवेयर, इट इज यस देयर सर, इन बुक्स, होगी नहीं समझता। एब्सोल्युटली यस। एक क्वेश्चन था सर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो रिफंड क्लेम कर सकते हैं वो मंथली करेंगे, क्वार्टरली या ईयरली होगा सर उसका? आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, क्लेम कर फ्लेक्सिबल सकते हैं। स्कीम है, आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। और ये सर अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो स्कीम है वो भी मैनुअल प्रोसेस पे है या ऑटोमेटेड सिस्टम पे, जैसे आपका एक्सपोर्ट में रिफंड होता है उस बेसिस पे सर? नहीं सर, देखिए एक्सपोर्ट में भी जैसे मैंने कहा कि दो तरीके हैं, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो ऑटोमेटिक रूट होता है, जिसमें जी। कस्टम्स के थ्रू आपका रिफंड ऑटोमेटिकली बैंक में आ जाता है। बट ऑटोमेटिकली। दूसरा मेथड जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मेथड होता है, वहां पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन होती है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, बट देन यू हैव टू फॉलो इट अप विद द डिपार्टमेंट। सो इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द एलयूटी केस। सो ओके। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो आपका रिफंड एप्लीकेशन होगा वो एग्जैक्टली वैसे ही फाइल होगा जैसे एलयूटी के केस में फाइल होता है। एक सर गवर्नमेंट ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बोला था कि एक हम ना मैकेनिज्म लाएंगे ऑटोमेटिक का। अभी जैसे हर आदमी को डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, मैनुअली फाइल करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन फाइल करने के बाद यू हैव टू सबमिट द पेपर टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दिया था कि दे आर वर्किंग ऑन इट द मैकेनिज्म ऑन दी ऑटोमेटेड सिस्टम। तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है या अभी होने का टाइम है सर उसमें? सर अब देखिए, लीगली अभी भी आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग का मैकेनिज्म ऑनलाइन ही है। There is no need for you to file the papers physically once the entire application in complete format is filed online. It's a separate method that in this case, the file has to be processed by an officer concerned. So sometimes for getting your refund expedited, you might need to go and contact the officer, but that is offline. It is not requirement of the law. This is just to ensure that you get some speedy refund, because sometimes the officer will not take action as promptly as a system will take. So that is outside the law that somebody will have to follow up manually. अदरवाइज सर प्रोसेस आज भी ऑनलाइन ही है। नाउ वी हैव मिस्टर वैभव गुप्ता। वैभव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हेलो। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर सर आई एम ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सर मेरे को ये पूछ, आई एम अ मर्चेंट ट्रेडर और मैं अपने जो मर्चेंट से प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ उस पर वो मेरे को जीएसटी लेवी करता है, और मैं हमेशा से एलयूटी में ही एक्सपोर्ट करता हूँ और उसका रिफंड क्लेम कर लेता हूँ 1 साल बाद, और अभी तक तो स्मूथली चल रहा था। आई आई जस्ट वांटेड टू नो उसमें प्रोसेस में कोई चेंज है या मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल सेम है? सर अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हैं तो आपके लिए सब कुछ सेम है, जैसा पहले आप परचेज कर रहे थे, सब्जेक्ट टू कि आपके प्रोडक्ट में अगर कोई रेट चेंज है तो वो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी अकोमोडेटेड, बट अदर देन दैट यस। द प्रोसेस विल रिमेन सेम सर। और मेरे को एक क्वेरी आई क्योंकि मैंने एक परचेज करा था अभी 18 सितंबर को, और वो एक्सपोर्ट करा 22 सितंबर को। तो जी वो डेट को वो आप कहते हैं ना 21 की अकाउंटिंग अलग रखनी है, तो इस केस में कुछ करना है मुझे? नहीं नहीं, बस मुझे ये जानना है कि जो आपका प्रोडक्ट है क्या वो 18 सितंबर का रेट अलग था और 22 का रेट अलग है। हाँ जी अलग है सर, लेकिन मैं तो जीरो ही, सब जीरो रेटेड ही है मेरा, तो मतलब कि मैं एलयूटी में एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ वो मैं समझ गया सर, उसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है। अगर आपने 22 सितंबर को भी एक्सपोर्ट किया है तो भी हम्म। आपको वही नॉर्मल प्रोसेस ही फॉलो करना है और रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी है, जैसे भी आप कर रहे हैं। अगर मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा सर आपके लिए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस क्या स्पीडी हो जाएगा? क्योंकि पहले इसमें 2 महीने लग जाते थे। तो क्या उन्होंने कहा है कि आप 1 हफ्ते बाद आपको विद इन 7 डेज आपको 90% रिफंड प्रोविजनल मिल जाएगा, वो इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं? सर वो लॉ में तो डे वन से ही एक्सपोर्टर्स के केस में ऐसा ही प्रोवाइडेड है कि आपको हम्म। विद इन 15 डेज 90% रिफंड मिल जाएगा। बट वो प्रैक्टिकली सर हम पिछले कुछ सालों से अब तक तो ये देखते आ रहे हैं कि काफी सारे केसेस में डिले होता है। बट अगर वो 2 महीने हम्म। में भी आ रहा है तो सर मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, मतलब एक्सपेक्टिंग इट टू बी कमिंग इन 15 डेज विल बी लिटिल टू मच। तो मैं कहूंगा कि ओके। लॉ का प्रोविजन ओके। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 2 महीने लगते ही हैं सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू।
थैंक यू वैभव जी, थैंक यू वेरी मच। दूसरे को लेते हो परेश जरीवाला जी। Yes, sir. Good afternoon. Paresh Jariwala from Surat. गुड सर, आफ्टरनून परेश जी। मैंने जुलाई 2017 में 2 शिपिंग बिल का एक्सपोर्ट किया है। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ जीएसटी एरा, राइट? तो जी उसी समय कुछ कंफ्यूजन की वजह से मेरे सीएचए ने हायर रेट ऑफ ड्रॉबैक लिया था, और इसीलिए हमारा क्लेम, आईजीएसटी रिफंड का क्लेम रिफ्यूज कर दिया था बॉम्बे कस्टम ने। तो जी अभी इसके लिए हमने अभ्यास किया है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक एक्सपोर्टर को बहाल किया है कि आईजीएसटी रिफंड शुड बी गिवन टू द एक्सपोर्टर, और जो हायर रेट ऑफ ड्रॉबैक लिया था उसका लोअर रेट ऑफ ड्रॉबैक में जो डिफरेंस है वो उसको डिडक्ट करके विथ इंटरेस्ट एक्सपोर्टर को मिलना चाहिए। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली आल्सो कंक्लूडेड द सेम थिंग। फिर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट में ने भी दोनों हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बहाल किया है। लेकिन इसके बावजूद हमने काफी लेटर लिखे कस्टम्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई कहीं से भी जवाब नहीं आ रहा। तो फिर हमने ईपीसीएच को लिखा है, और ईपीसीएच ने आई थिंक एफएम को भी लिखा है, लेकिन वहां से भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो सर क्या करना चाहिए? सर, इसमें ना देखिए, हम सीधा अगर गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उनके पास भी बहुत सारे मैटर्स जाते हैं। तो जी। मुझे नहीं लगता कि वो इंडिविजुअल लेवल पे हमें इसमें कोई हेल्प कर पाएंगे, ऑल्दो वी शुड स्टिल कंटिन्यू फॉलोइंग विद देम। बट इसका सही तरीका ये है सर कि अगर आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व है तो आप भी हाई कोर्ट में जाइए। और गुजरात हाई कोर्ट का बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एंडोर्स किया है। तो जी। अगर जी। आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक दिन में रिलीफ मिलेगा सर, और उसी जजमेंट को आप बेस बना के उनको बोलिए कि हमारा 8 साल से रिफंड नहीं आ रहा है, तो कोर्ट विल डेफिनेटली डायरेक्ट दी कंसर्न डिपार्टमेंट सर। हाँ, तो लेकिन सर हर एक एक्सपोर्टर को ऐसे जाना पड़ेगा, ये तो थोड़ी वो बात है, क्योंकि हमारा रिफंड सिर्फ 8-8.5 लाख का है। तो ये हाई कोर्ट में फीस हमने तपास किया तो 2 लाख फीस मांगते हैं। तो फिर इसमें तो काफी खर्चा हो जाएगा, टाइम भी बिगड़ेगा। हाई कोर्ट, हम तो सूरत में है, हाई कोर्ट है अहमदाबाद में। तो फिर ऐसे कैसे हो सकेगा? अगर एक्सपोर्टर जो कोर्ट में जाते हैं उसको रिफंड मिलता है तो उसके बेस पे बाकी एक्सपोर्टर को भी मिलना चाहिए। सर आप बिल्कुल, बात तो आप बहुत ठीक कह रहे हैं सर, बट मुझे इसका कोई और ऑल्टरनेट समझ में नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि ईपीसीएच में अगर ऐसे और भी कुछ मैटर्स आए हुए हैं तो एक जी। जॉइंट पिटीशन लग सकती है जिसमें हाँ। सभी एक्सपोर्टर्स का मैटर एक साथ टेकअप हो जाए। और इसमें हाँ। आप भी ईपीसीएच की मदद कर सकते हैं कि अगर कोई और ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं तो उन सबको कंसोलिडेटेड पिटीशन लगा दी जाए, उससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हाँ। इफेक्टिवली एक ही बार में कोर्ट सबकी फेवर में ऑर्डर कर देगा। हाँ। और सर इसलिए मैंने पीसीएच को भी यही सूचना दी है कि परेश आप जी, मैं एक्सपोर्टर से परेश जी, मंगवाइए। और हमारे पास फीओ। परेश जी, मैं आ जाऊं परेश जी, लेट मी कम। जी। मनोज जी ने जो सजेशन दिया, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। हमने जिस तरह तो हमारा ये है, ये जॉइंट लिटिगेशन वाला ना, हमारे हाँ। पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है ऐसा। एवरी स्टेट के लिए अलग करना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा जो मनोज जी ने आपको पहले सजेशन दिया ना, जी। कि आपके पास हाई कोर्ट का जजमेंट है, जी। आप कोर्ट तक खुद चले जाइए। जी। क्योंकि हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो जो हम करते हैं लिटिगेशन वाला मैटर, हमारा कोई लीगल सेल नहीं है यहाँ पर कि जी। हम ये ज्वाइंट को करते रहे। मेरा आपको सुझाव है ये, जो मनोज जी ने यस सर, पहला लेकिन दिया, बहुत मेरा सही आपका एक, मेरे पीसीएच के एक है। सुझाव है कि मैं यू कैन कांटेक्ट विथ फीओ एंड डू समथिंग एल्स अरे फॉर नहीं, स्मॉल एक्सपोर्टर्स। वो तो हम कर रहे हैं। वो फीओ के साथ तो हमारा आपका जो मैटर है हमने सबको बताया है, जी। ग्रुप में बताया, सबको बताया, वो हम कर रहे हैं उनसे डिस्कशन जी। है। लेकिन मेरा सजेशन, जैसा मनोज जी ने पहला सजेशन आपको दिया, कि जी। आप सीधा, मतलब चूंकि आपके पास हाई कोर्ट का जजमेंट है आपके पास, जी। एंड जी। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, जहां आप कह रहे हैं यस। 7-8 साल से कुछ नहीं हुआ, एक तरफ तो सरकार जीएसटी 2.0 पे आ गई है, अब ऐसा ना जी। हो पता चला जीएसटी 3.0 पे चले जाए सरकार और तब तक भी आपका रिफंड ना मिले। जी। तो इट इज टाइम, क्योंकि हमने सर, अपनी तरफ से प्रयास करके देख लिया। हाँ सर, वो आपका सजेशन ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ
कि ईपीसीएच और दूसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अलॉन्ग विथ फियो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से संपर्क करके इसका कानून बना दे, एक ऐसा नोटिफिकेशन डलवा दे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने सारी चिट्ठियां लिख ली है, वो हम प्रयास करते रहेंगे। जी जी ठीक है, वो हमने चिट्ठियां आपको पता है, कॉपी हम शेयर करते हैं आपके साथ। जी जी हाँ, वो मिल गई है। हाँ, वो आपको हाँ मिल गई है, वो हम कर रहे हैं, वो प्रयास हम कर रहे हैं, वो तो हम करते रहेंगे जब तक, लेकिन उसमें फिर टाइम लगेगा, जैसा मनोज जी अच्छा, ने बताया। तो मेरा हाँ सजेशन ये है कि आप अपना अपना प्रयास जारी रखें, और हम ठीक आपके है। साथ हैं यहाँ पर, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू परेश जी, थैंक यू सर, वेरी जब मच। जब 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 ईपीसीएच जब ईपीसीएच अप्रोचेस एफएम, ये हमारा सुझाव डाल देना कि भाई ऐसा स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए हाई कोर्ट ठीक या है, कोर्ट का ये सही है। खाना, जो हम लोग दूर है, हम लोग अहमदाबाद से दूर है, तो हमारे लिए वो एडवोकेट से मिलना जुलना वो जल्दी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा देखिए एफएम की देखिए, ओर आप से कुछ। कीजिए। ठीक है परेश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। ओके। ओके, बहुत सारे और लोग भी, और कौन है भाई सेकंड ऑप्शन तुम आपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, ग्रुप से बाहर दूसरा ऑप्शन चौथे पे क्लिक कर। मैंने क्लिक नहीं किया, उसने किया है, सतपाल ने इसको दूसरा बटन दबा के किया है ना। दूसरे बाहर ही था। ठीक है, ठीक है, फिर हो गया। अच्छा, नाउ शौर्य जैन साहब बताएं, अपना क्वेश्चन पूछे। जैन साहब, मिस्टर शौर्य जैन, म्यूट पे शौर्य जैन। आप म्यूट हो भाई, आप अनम्यूट करो अगर आपको पूछना है अपना प्रश्न। अच्छा, तब तक मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ। एक पूछ रहे हैं, कोई है, मिस्टर कमल कुमार पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट जीएसटी पेड टू फ्रेट फॉरवर्डर्स। बोलो जी। सॉरी, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं समझा सर, इसका मतलब क्या है? बस उसने इतना ही लिखा है, व्हाट अबाउट पेड। तो अगर जो आप मुझे मुझे जो समझ आ रहा है मैं उस हिसाब से अपना रिप्लाई कर देता हूँ सर, कि फ्रेट फॉरवर्डर्स को भी जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, दैट इज एज गुड अ पार्ट ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट अगेन ये सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो अकॉर्डिंगली जब आप एक्सपोर्ट का रिफंड फाइल करेंगे तो बाकी चीजों के साथ ये भी रिफंडेबल है, बट सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में है, जहां सर्विसेज का रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। इनपुट बता दीजिए। ये होगा तो In LUT model, can we claim input if we are doing doing domestic sales also? मनोज जी, ये तो दे हाँ दिया जी, हाँ था जी, जवाब। यस यस यस। हम सर Yes. एलयूटी मॉडल में प्रोपोर्शनेट रिफंड लेने का ऑप्शन होता है। अगर आप दोनों तरीके की सेल कर रहे हैं तो जो आपकी टर्नओवर का रेशो होता है वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में जितना है उतना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बाकी को आप डोमेस्टिक सेल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अमीक किया, यस सर, थैंक यू। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना। सर मेरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बिकॉज मैं काफ़ी नई हूँ। तो मेरे हेयर एक्सेसरीज है जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है ऑन कॉटन, लिनन, प्लांट बेस्ड लेदर, उस टाइप के। तो दो क्राइटेरिया में मुझे क्वेश्चन पूछना था। पहला तो मेरा हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है, और जो 5% अभी हो चुका है हैंडीक्राफ्ट पे जीएसटी, वो अप्लाई होता है। बट बिकॉज दे आर मेड ऑन टेक्सटाइल, तो अगर उसका रेट 2,500 से ऊपर जाता है तो क्या मुझे मेरे हैंडीक्राफ्ट को 18% पे जीएसटी लगाना पड़ेगा, या बिकॉज इट्स अ हैंडीक्राफ्ट वो इट कैन स्टिल गो टू 5%, और would it have to be 18% when it goes above 2,500 pricing? Did you get my मैम question? मैम, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन and in which HSN code your product will fall. If your product generally falls in the HSN code specific to the handicraft, then it does not matter if the price is more than 2,500 rupees, it will still be taxed at 5% only. But if your product falls under the HSN code related to textile products, then obviously beyond 2,500 rupees, it will be taxed at 18%.
So I will not be able to answer it right away unless we first have a look at the HSN code which applies to your product specifically. So that's a very very specific question. मैं इतना ही आंसर कर सकता हूं कि अगर आपका HSN कोड टेक्सटाइल नहीं है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस वो 5% पे ही जाएगा। अमी जी, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अपना रिटर्न क्वेरी ना, एक्सपोर्टर्स क्लिनिक वाला ईमेल आईडी है जो आप, जिसपे आपको सर्कुलर भी आया जिससे, उस पर रिटर्न रिप्लाई डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए आपका क्वेरी, एंड विल फॉरवर्ड इट टू मनोज जी एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और कोई इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? कोई नहीं? इधर भी तो है। अच्छा, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन मनोज जी। अब मैं थोड़ा सा चीज समझ लूं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। जी। मान लीजिए कोई आइटम जिसका इनपुट 18% पे था और जो आउटपुट है वो मेरा 5% हो गया। पहले 18 था, अब इनपुट तो 18 रह गया, लेकिन आउटपुट मेरा 5% हो गया जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम। तो मेरे लिए, मैं अगर मैं अपने आप को निर्यातक मानूं, तो मेरे लिए सुझाव है कि मैं बॉन्ड एलयूटी पे जाऊं। बॉन्ड एलयूटी में जीएसटी पे किए बिना मैं निर्यात कर रहा हूँ, और जितना भी मेरा था, वो 18 था, 5 था, 12 था, 28 था, जो भी था, उसका सबका मुझे रिफंड मिल जाता है। यस सर। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं बॉन्ड एलयूटी, क्योंकि आपने पहले ही अपने वक्तव्य में कह दिया कि आप अपने जीएसटी फाइलिंग के मैकेनिज्म को थोड़ा रिविजिट करें, जैसा आपका पहला सुझाव था। जी। तो मान लीजिए मैं बॉन्ड एलयूटी में तो आ जाऊंगा, मान लीजिए मैं जीएसटी पे करके कर रहा हूँ। अब मैंने जीएसटी पे करके 18% जीएसटी पे किया मैंने, और 5% मेरा, सॉरी, इनपुट 18% है, 5% जीएसटी पे करके किया मैंने। तो जो बैलेंस बच रहा है उसके लिए आप कह रहे हैं देयर इज अ मैकेनिज्म, ड्यूटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। देखिए, लॉ आपको इसके लिए प्रोहिबिट नहीं करता। लॉ में ये प्रोविजन है कि एक ही एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी में 5% का रिफंड ले लीजिए, और जो डिफरेंशियल 13% है उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड ले लीजिए। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने जहां भी एक अभी तक पहले ट्राई किया है तो बड़ी डिफिकल्टी आती है कि सेम मंथ के लिए आप दो अलग अलग मेथड्स में जब रिफंड क्लेम करते हैं तो प्रैक्टिकली इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। सो तोड़ के करना पड़ेगा ना, 5 और 13 करना पड़ेगा। 13% एक जगह से लेंगे आप, 5% एक जगह से लेंगे। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर रिफंड फॉर द सेम एक्सपोर्ट। 5% अलग ले रहे हैं, 13 अलग ले रहे हैं, तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट एडवाइजेबल। व्हाइल लॉ डज नॉट प्रोहिबिट कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम, लेकिन इट्स अ कम्बरसम सिस्टम। यस सर। तो एज एन एक्सपर्ट योर एडवाइस वुड बी कि बॉन्ड एलयूटी के माध्यम से ही करें। वो इसलिए भी मैं कहूंगा सर कि आपको डुप्लीकेट एफर्ट करना पड़ेगा, और सही। it will end up getting into a difficult situation. So there is no point in getting into that. जब आपके पास दूसरा बेटर ऑप्शन है कि आप बॉन्ड एलयूटी में ही चले जाएं, तो दैट्स अ प्रैक्टिकल एडवाइस, बट स्टिल आई कांट स्टॉप एनीवन बिकॉज लॉ डज नॉट प्रोहिबिट। आप चाहें तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसी में, मान लीजिए मेरा इनपुट जो था वो 18% था 21 सितंबर तक। 22 सितंबर को जब मैं शेड्यूल देखता हूँ तो वो 5% हो गया, और इधर भी 5% हो गया। तो मेरे लिए तो बात ठीक हो गई भैया, 5% अगर मैं जीएसटी क्लेम करके करूँ, एलयूटी से करूँ, मेरे बात न्यूट्रल है। जी। लेकिन जो 13% का मैं जीएसटी दे चुका हूँ पहले, 21 सितंबर से पहले, जी। उसको मैं कैसे क्लेम करूंगा? वो बना है मेरा, अभी वो कहीं गया तो नहीं, वो मैं क्लेम कर सकता हूँ? 100% आप क्लेम कर सकते हैं सर। नंबर वन, तो क्योंकि उस टाइम पे आपका आउटपुट भी 18% पे था, तो डिपेंड करता है कि आपने जब इनपुट 18 में लिया और वो ऑलरेडी आप 18 में एक्सपोर्ट भी कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका रिफंड आ ही जाएगा। आपको दिक्कत सिर्फ उस केस में आएगी जहां 21 सितंबर को आपके पास कोई अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है जिसपे 18% जीएसटी लग के आया है। तो जो 21 सितंबर को आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है 18% वाला, या कोई WIP पड़ी हुई है, फिनिश गुड्स पड़े हैं, तो उसमें उसमें आपके पास अगेन वही चॉइस है कि अगर आप एलयूटी में जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको वो पुराना वाला भी सारा मिल जाएगा,
और अदरवाइज अगर वो नहीं यूज कर पा रहे हैं आप, तो भी वो आपका लैप्स नहीं होगा, वो इनपुट आपका जिंदा रहेगा हमेशा। आप कभी 2 साल बाद भी डोमेस्टिक सेल करेंगे, कोई नया बिजनेस करेंगे, तो वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एक बार रिवाइज कर लूं, क्योंकि यही मोटी मोटी क्वेरी है लोगों की जो पूछ रहे थे, जी तो फॉर रिवीजन से। इसके अलावा तो मेरे ख्याल दिस इज इट, द होल क्रक्स ऑफ द मैटर, आई थिंक, एम आई राइट? दिस इज द, यस एब्सोल्युटली सर, दिस इज द होल क्रक्स ऑफ द मैटर। एक चीज आप और लोगों को जरूर डिसेमिनेट कीजिएगा। इस पे एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पूछना कि नहीं इसमें कुछ नहीं पूछना, जेपी सिंह वाला आपने आपने यही तो अभी मैं यहाँ खत्म कर लूँ पहले, रुको यार तुम। प्रिंट हो सकता है। मनोज जी, सुदर्शन के पास एक क्वेरी है, वो आपको अलग से भेजेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो मेरे ख्याल से इफ एवरीथिंग इज फाइन, वी डू नॉट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, वी कैन क्लोज दिस सेशन। तो तो मैं एक बार सर क्लोज करने से पहले राजेश सर एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि कमीशन एजेंट्स या बाइंग एजेंसी मॉडल हाँ में हाँ काम हाँ करते हैं। तो हाँ उनके लिए जो बड़ी अपडेट है वो इस 2.0 में ये है कि काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो इंटरमीडिएरी सर्विसेज होती हैं, जिसमें बेसिकली कमीशन और बाइंग एजेंसी टाइप सर्विसेज आती हैं, हाँ 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 हाँ। उनमें पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि जब आप एज अ बाइंग एजेंट काम कर रहे हो फॉर अ फॉरेन बायर, हम्म, तो उसमें आपको पैसा फॉरेन करेंसी में आता है, आप ये मानते हो कि आप भी लोगों की तरह एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, बस गुड्स नहीं है, आपकी सर्विसेज हैं। हम्म। लेकिन लॉ ये कहता था कि नहीं, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, इसको हम डोमेस्टिक सर्विस ही मानेंगे और इस पे आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। देयर इज नो रिफंड पॉसिबल इन दिस केस। हाँ, वो लोकेशन वाला कुछ चक्कर था ना, हाँ जी, वो प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई का चक्कर था प्लेस ऑफ जो। सप्लाई का चक्कर था। हाँ जी, तो अब उन्होंने इस काउंसिल मीटिंग में ये डिक्लेयर किया है कि हम वो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चक्कर है उसको खत्म कर रहे हैं। तो हम्म हालांकि वो नोटिफिकेशन मुझे भी दिखाई नहीं दिया, शायद वो आ जाएगा थोड़े दिन में, बट वो एक हम्म बहुत बड़ी रिलीफ है उन सब लोगों के लिए जो बाइंग एजेंसी मॉडल में काम करते हैं या कमीशन एजेंट मॉडल में काम करते हैं। उनको भी उनकी सर्विसेज अब एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट होंगी, तो उसको भी जो जीएसटी वो पे कर रहे हैं वो सब रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, वो सब रिफंड मिल जाएगा। उनकी चलिए सर्विस में इंडिया अकाउंट। चलिए, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो वेरी मच for being part of our efforts to guide people on GST 1.0, GST 2.0, and probably GST 3.0, and so on and so forth. How long this थैंक यू will सो go? मच सर, इट इज ऑलवेज प्लेजर। थैंक Right. यू सो मच। So thank you very much, and I would also like to thank the participant who have joined in. आपके मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो, तो I would request everyone to please do write into us at our email ID, या email exportersclinic@epcs.com। उससे से आपको सर्कुलर भी आया है, अभी मैं चैट बॉक्स में लिख भी देता हूँ। तो प्लीज डू शेयर अस योर क्वेरीज एंड विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। उसके अलावा ये जैसे एक्सपोर्टर्स क्लिनिक का एक इनिशिएटिव है, the next topic would be on a different subject. I'm not sharing that with you right now because we have a fair uh, coming up. So probably we'll meet you again on the Exporters Clinic platform after the fair. Meanwhile, if you have any query pertaining to this session or the past session, please do write into us. So thank you so very much for joining us. And thank you, Manoji. Thank you very much. Thank Sir, you. I just wanted to say one more thing that today only my latest book on GST 2.0 has been released. So I will send a few copies to the EPSH office also. So wherever required, you can distribute it further to the members. Right. Thank you, Manoji. Thank you very much. And we'll close the session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.